ہیں دانیال ٹورڈز فین کوسچنز. فینز نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں آپ کے لیے, اور پہلا سوال ہے عبد الرحمان شہباز سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کو کیوں لگتا ہے احمد شہزاد کیوں نہیں پک ہوئے, اور آپ کی بڈنگ میتھڈ کے بارے میں کیا سوچ ہے. اور پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا جو آئی تھنک گوز ویری ویل ود ٹوڈیز کنورسیشن, کہ پی ایس ایل پشاور اور کوئٹہ میں کیوں نہیں کھیلی جاتی. آئی تھنک جو کیوں نہیں کھیلی جا رہی اس کے صرف کرکٹنگ ریزنز تو نہیں ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی ایسا کرکٹ فین ہے جو کہ جس کا نہیں دل ہوگا کہ پشاور اور کوئٹہ میں بھی کھیلی جائے. آپ کو یاد ہے کہ مجھے یاد ہے لوگ مجھے پاکستان سے باہر سے جو کہ کرکٹ نہیں فالو کرتے وہ مجھے کہہ رہے تھے جب وہ گوادر اسٹیڈیم کی وہ بڑی مشہور پکچرز آئی تھیں کہ یہ آئی ووڈ لائک ٹو وزٹ ہے, یہاں کرکٹ کب ہوگی. سو آئی تھنک ایک ایپیٹائٹ فرام دا فینز ایک ہے بالکل کہ کرکٹ وہاں پہ کھیلی جائے. لیکن جس طرح ہم نے دیکھا انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کے بارے میں کچھ پرسیپشن جو کہ پاکستان سے باہر ہیں وہ چینج کرنا تھوڑا سا ٹائم ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وی سو ایون پینڈی میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کو کھیلتے ہوئے ایٹ ٹائمز ایشوز تھے which reminded us کہ ابھی پاکستان بھی ایک ایسی جرنی پہ ہے جس کے اندر وہ اس سٹیج تک نہیں پہنچا جس پہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم پہنچے ہیں. تو میں بس یہی کہوں گا کہ ہوپفلی سون ان دونوں شہروں میں بھی کھیلی جائے. آئی ووڈ لو ٹو کور کرکٹ پشاور میں اور کوئٹہ میں. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایک مسڈ اپرچونٹی ہے کہ اس سال بلکہ 3 کی جگہ بھی صرف 2 سٹیز میں کھیلی جا رہی ہے, بٹ وہ زیادہ آئی تھنک کہ کووڈ نیسیسٹی ہے دین سیکورٹی نیسیسٹی. ہوپفلی وہ کھیلی جائے گی سون انف. اور پہلے کوسچن آپ پھر بتائیں بیکاز آئی تھنک میں بھول گیا. ہاں جی, پہلا کوسچن تھا کہ احمد شہزاد کیوں نہیں پک ہوئے, اور آپ کی بڈنگ میتھڈ کے بارے میں کیا اوپینین ہے اف اینی. ڈرافٹ کے صرف کوئکلی میں یہ کہوں گا ڈرافٹ ایک لیول ایکسائٹمنٹ اس طرح کریٹ کرتا ہے کہ ڈرافٹ میں ایکوالٹی آ جاتی ہے پاکستان کے اندر ایٹ ٹائمز, ورنہ اگر صرف آپ سیلریز اور آپشن سے کرتے تو یو وڈ سی ا سچویشن مے بی جہاں پہ یو نو ٹیمز لائک کوئٹہ, آئی ڈونٹ نو اسپیسیفکلی فائنینشیل ان کی کیا اسٹرینتھس ہے, لیکن یو نو ٹیمز لائک کوئٹہ شاید ٹیمز لائک کراچی اینڈ لاہور کے ساتھ فائنینشلی نہ کمپیٹ کر سکتی جس طرح ہم کبھی کبھی آپشنز میں دیکھتے ہیں, یا اگر کوئی اور کوئی فائنینشیل سسٹم ہو. ڈرافٹ کے اندر ایوری ٹیم ان اے وے ہیز دی اپرچونٹی ٹو گیٹ دی بیسٹ پلیئرز, گیٹ دی پلیٹینم پلیئرز. تو وہ مجھے کچھ behind the scenes reasons بھی ہوں گے, but احمد شہزاد is one of those players جو کہ once again ان کا ٹیلنٹ تو آپ کوئی question نہیں کرتے. I still think کہ احمد شہزاد is someone جو کہ اگلے 2-3 سال میں if he still has the opportunity کہ اگر وہ کچھ جو ان کی تھوڑی سی نان کرکٹنگ ریزنز ہیں وہ ان کو اگر سارٹ آؤٹ کریں تو I still think کہ ڈومیسٹک سرکٹ پہ اینڈ پی ایس ایل میں he could still be a very important asset because everyone آپ دیکھا ہی ہوا آپ نے احمد شہزاد از فن ٹو واچ پلے. تو اگر وہ اپنے بیسٹ پہ نہیں ہے تو وہ پاکستان کا بھی اور پی ایس ایل کا بھی نقصان ہے. بٹ آئی لائک احمد شہزاد, ہوپفلی ویل گیٹ ٹو سی پلے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کوسچن کمز فرام کوئی بھی نہیں. واٹ از دا کرنٹ اپڈیٹ فار دی انڈر 19 پی ایس ایل, اگر کوئی اپڈیٹ ہے, اور کیا یہ کمرشلی فیزیبل ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے اس انڈر 19 پی ایس ایل اگر ہوتا ہے تو اس میں کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ کور ہو سکتی ہے. وہ he talked about a lot of ideas. انہوں نے صرف انڈر 19 پی ایس ایل کی نہیں, انہوں نے ویمنس پی ایس ایل کی تھی. if you remember انہوں نے کہا تھا we might be the first South Asian country, we might be the first Asian country to have a women's PSL. تو but I think ان کو پہلے کمرشلی اس کو لائن اپ کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا فیزیبل ہے, because انڈر 19 PSL کرانا will take a lot more money than وہ جنریٹ کرے گا, اور اس کی وجہ سے آپ نے ایک فائنینشیل کمٹ اس کو اپورشن کرنی ہے, اور وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پی سی بی اور پی ایس ایل کتنی فائنینشلی ہیلتھی پوزیشن میں اس کو کرنے کے لیے. بٹ اچھا جی, نیکسٹ کوسچن از فرام حسنین. وہ پوچھتے ہیں کہ پی ایس ایل سپر سٹارز کو کب اٹریکٹ کرنا شروع کرے گا, دنیا بھر کے سب سے بڑے پلیئرز آ کے پاکستان میں کھیلے. پاکستان میں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ سپر اسٹار نہیں کھیلے. ویو ہیڈ مطلب کہ آپ ڈی ویلیئرز یہاں پہ کھیلے ہیں, یہاں پہ جیسن رائے کھیل رہے ہیں ابھی بھی, یہاں پہ برینڈن میکلم کھیلے, کرس گیل کھیلے ہوئے. یہ فرسٹریشن آئی ڈونٹ تھنک ہے کہ سپر اسٹارز اس طرح سے اٹریکٹ نہیں ہوتے. کبھی مے بی ایشو فرسٹریشن آئی ڈونٹ تھنک انڈیویجول سپر کی ہے, آئی تھنک زیادہ ہے مے بی کہ پی ایس ایل کی پروفائل کو گرو کرنے کی تھوڑی امپیشنس ہے کہ مے بی ایز اے لیگ پی ایس ایل زیادہ گرو کرے. دا فیکٹ کہ پچھلے 1-2 سال میں شاید اس طرح سے وہ والے سپر آتے تھے وہ آئی تھنک از مور ٹو ڈو ود یہ جو کووڈ والا کلائمیٹ ہے, اینڈ کبھی کبھی کچھ سیریز کے کلیشز آتے ہیں. یہ ساؤتھ افریقہ کی جو سیریز کلیش ہے اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے, وہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیویجول سپر اسٹارز کا نہ آنا واز ایور این ایشو. اگر آپ obviously بات کریں obviously کہ جسپریت بمراہ کیوں نہیں آ رہے تو اس کی تو ڈفرنٹ ریزنز ہیں, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرلی سپر اسٹارز نہیں پہلے آئے تو آئی تھنک سپر اسٹارز انڈیویجولی پہلے آئے ہیں. دا فوکس از کہ پی ایس ایل کی لیگ کی ایز اے پروفائل وہ بڑھائی جائے. آئی تھنک جب وہ فائنینشیل گروتھ اس میں آئے گی تو یہ آپ ایئر آن ایئر پھر وہ گروتھ دیکھیں گے جو کہ فینس کو لگتا ہے کہ پی ایس ایل کو ملنی چاہیے.
दानियल, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो जिनका नेचर मुझे बड़ा पसंद है. गोस्टली का सवाल है कि जब क्या चैलेंजेस थे जब आपने 2016 में पीएसएल का पहला सीजन कवर किया था? ब्रांड न्यू लीग था, फैंस को भी नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करना है, तो आपको कैसा लगा था वो उसको कवर करते हुए? व्हाट वर द चैलेंजेस फॉर यू? अच्छा, तो पहली तो बात है कि मैंने प्रॉपरली जो फर्स्ट पीएसएल कवर किया था वो 2017 का था, बिकॉज 2016 में आई वाजंट वर्किंग विद क्रिकेट. तो मैं एक्चुअली तब डेली टाइम्स पे काम कर रहा था एंड मेरा कवर करने वाला रोल नहीं था. मैं थोड़ा सा मैं भी पहली दफा एक्सपीरियंस ही कर रहा था कि वो क्या सिचुएशन है. मुझे भी शुरू में जब आप कवर नहीं कर, मैं 16 में प्रॉपर्ली कवर नहीं की, 16 और 17 में जो मैंने फर्क देखा वो जब एक नैरेटिव मैंने रियलाइज किया कि पावर ऑफ अ नैरेटिव इज वेरी स्ट्रांग. जब आप एक कंटिन्यूअस नैरेटिव बना सकते हैं जिसके अंदर आप टीम के साथ एसोसिएट करते हैं. आप देखिए 5-6 साल का कैरेक्टर बन गया है. आप लाहौर के अंदर सोचेंगे तो आपके ज़हन में एक टाइप की टीम आपके ज़हन में आएगी. इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी उस तरह सोचेंगे. सो आई थिंक बेसिकली जो कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर होती है उससे फैंस की अफिलिएशन भी बढ़ती है टीम्स के साथ, उनकी बेसिकली ज्यादा इंटेंस वो फैंस भी बनते हैं और वो लीग की प्रोफाइल भी बढ़ती है. अगर आप जिस तरह पहले होता था कि 2006 में आई थिंक एबीएन अमरू कप था, फिर बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के अगले साल एक डिफरेंट टूर्नामेंट था, तो वो या फिर कायदे ट्रॉफी के साथ भी एक्चुअली एट टाइम्स होता रहा है. आई थिंक बेसिकली द की इज कि आप कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर होता जाए और वो लॉन्ग वे. 2016-17 में आई थिंक प्लेयर्स को भी नहीं पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट, और अब पीएसएल एक अपनी यूनिक प्लेस थोड़ी सी कमांड करती है क्रिकेट के कैलेंडर में. बिल्कुल. अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दानियल मुझे लगा जो आई एम हैप्पी टू आस्क दिस फ्रॉम यू. एक क्रिकेट राइटर होने के नाते आपके लिए सबसे पावरफुल या ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक अपने करियर में क्या रहा है क्रिकेट को कवर करते हुए? अच्छा, पहली तो चीज है कि एक्चुअली एक लिहाज से आसान है आंसर करना. मुझे याद है कि पीएसएल में ही जो एक मुझे काफी पावरफुल मोमेंट लगा था वो 2017 का पीएसएल फाइनल था जब इनिंग्स भी हुई थी. पीएसएल वाकई अपना मैच पाकिस्तान में, अपनी ही लीग का एक मैच पाकिस्तान में करा सकेगी या नहीं, और वो एक एम्बिशन था कि पाकिस्तान में पीएसएल का फाइनल होना चाहिए. एंड वो एक ऐसा टाइम था कि वो द फर्स्ट मैच जो कि मैं क्रिकेट इन्फो के लिए कवर करने गया था एज अ क्रिकेट राइटर बेसिकली. और वो जब वहां पे मुझे मूड नजर आया एंड यू नो पेशावर ज़ल्मी के सारे प्लेयर्स भी आए थे. आई थिंक कोयटा के कुछ प्लेयर्स नहीं आए थे फॉरेन प्लेयर्स, लेकिन यू नो व्हेन आई सॉ डैरन सैमी क्राउड के साथ इंटरैक्ट किए, जिस तरह का क्राउड था, जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर था, वो मुझे काफी यूनिक लगता है. एंड मेरे ख्याल में उसके बाद से जो मैंने द पीस दैट आई रोट वाज वन ऑफ माय बेटर पीसेस. मैं अपने पुराने पीसेस की बात नहीं करता, लेकिन आई थिंक वो वाज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय कि मुझे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ये इशू नहीं, ये बात नहीं थी. बात ये थी कि वो एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि इट अलाउड मी टू राइट वेरी वेल. तो मुझे लगता है कि वो एक मुझे काफी पावरफुल मोमेंट महसूस हुआ था कि पाकिस्तान में जो पीएसएल हुई और जो पहला मैच हुआ एंड दैट हैपेंड टू बी अ फाइनल, और उसके इर्द गिर्द क्या एटमॉस्फेयर था. जबरदस्त जबरदस्त. अब आते हैं जी दानियाल टुवर्ड्स वन ऑफ द बेटर फैन नेम्स आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ. अहमद शहजाद फैन 123 पूछते हैं कि जनरल कंसेंसस है कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए में बेहतरी लाए हैं, पर क्या वो पूछते हैं कि आपको लगता है जो अगली पुश्तें हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, स्पेशली बैट्समैन, अब वो फोकस करेंगे कि जी हम टी20 खेलें, पीएसएल खेलें, बड़े छक्के मारें, और उस पे फोकस नहीं करेंगे जो पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है रेड बॉल क्रिकेट में? ये अहमद शहजाद का बैकअप अकाउंट तो नहीं है? ये देखना पड़ेगा. because वो उस टाइप का नाम आई कैन इजीली इमेजिन. नहीं, लेकिन क्वेश्चन फेयर है. कुछ लोग पहले एट टाइम्स एक लेजी है कभी कभी कहना है कि टी20 क्रिकेट हो तो टेस्ट नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ऑब्वियसली इंग्लैंड ने भी जब टेस्ट क्रिकेट से अपना फोकस हटा के या फिर टी20 क्रिकेट पे और व्हाइट बॉल क्रिकेट पे सोली अपना फोकस 2015 के बाद डाला था, तो इट इज ट्रू टू से कि उनकी रेड बॉल क्रिकेट सफर की थी. सो कभी कभी हर टीम के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और एक ट्रेड ऑफ तो इस चीज में है, फॉर श्योर है. लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो कि अब आ रहा है, जो कि शायद पहले नहीं था, कि आप कभी कभी आप टेस्ट साइड देखते हो और उसके अंदर आपको क्लियर सेपरेशन नजर आती है कि ये पाकिस्तान की टेस्ट साइड की एक स्पाइन है और ये पाकिस्तान क्रिकेट की स्पाइन है, और वो टीम और पर्सनल थोड़ी अब बदल रही हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग है कि वही प्लेयर जस्ट बिकॉज वो टी20 खेल रहे हैं वो टेस्ट जरूरी नहीं है कि खेलें. हमको याद है जब शुरू में टी20 आई थी तो यू नो प्लेयर्स लाइक मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम ये टी20 क्रिकेट भी खेल रहे थे, जो कि यू नो शायद उनकी it didn't make sense कि वो ये खेले. तो अब पाकिस्तान में आई थिंक अनलाइक सम अदर प्लेसेस, पाकिस्तान के अंदर
इनफ एक बेस है जो कि क्रिकेट एंथुसियास्ट है, एक सिंगल स्पोर्ट कंट्री है, एक ह्यूज कंट्री है 22 करोड़ की, तो उसके अंदर इनफ वो है कि आपके पास व्हाइट बॉल के लिए और टेस्ट के लिए इनफ वो बेसिकली प्लेयर्स हों जो कि अलग अलग रह के दोनों फॉर्मेट्स में दोनों टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स में कंपेटिटिव रह सकते हैं. सो एक डेंजर है अगर ये अच्छी तरह मैनेज ना हो, फॉर श्योर. जिस तरह आई थिंक इंग्लैंड का आइडियली मैनेज नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक अगर आप कहो कि पाकिस्तान के अंदर वो पर्सनल और वो एक बेस नहीं है, तो दैट्स नॉट ट्रू. और उस वजह से मे बी शायद मैं उतना कंसर्न ना हूं फॉर अबाउट दिस. अलियान हैदर का क्वेश्चन है कि सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को देखते हुए पाकिस्तान में क्या आपको लगता है वुमेन्स पीएसएल जो है फीजिबल है? और उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, आई नो उस पे आप बात कर चुके हैं पहले, बट आई जस्ट आस्क फॉर अ शॉर्ट आंसर ऑन दैट, कि वो कहते हैं कि मेन रीजन क्या है कि मॉडर्न टी20 की ग्रेड्स पीएसएल में नहीं आते, अवेलेबिलिटी की इश्यूज हैं या आजकल कोविड के टाइम में बायोसिक्योरिटी के इश्यूज हैं? पहला क्वेश्चन में आई थिंक जब तक कोई चीज होती नहीं तो लगता है, आपको लगता है कि ये चीज मुश्किल होगी, आपको डर लगता है कि वो कितनी सक्सेसफुल होगी. वुमेन्स पीएसएल वाली जो सोशल और कल्चरल इश्यूज हैं वो पाकिस्तान में ऑब्वियसली हैं, बट इट्स आई थिंक याद रखना चाहिए कि एट टाइम्स कराची में और लाहौर में पाकिस्तान की एटलीस्ट नेशनल टीम गद्दाफी स्टेडियम में भी और कराची में भी मैचेस खेलती रही है, एंड वी हैवंट रियली सीन एनी इश्यूज उस चीज के होते हुए. एंड पाकिस्तान की टीम्स खेली हैं, नेशनल मैचेस खेली हैं, एंड आप पिछले 8-10 साल में देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो वुमेन्स टीम के प्लेयर्स उनकी प्रोफाइल ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती रही है. मे बी 10 साल पहले जवेरिया का या बिस्मा का या फिर सना मीर का नाम लोग इतने ना जानते हो, लेकिन ऐसा साहब नाउ किसी भी क्रिकेट फैन को मेंशन करेंगे तो एटलीस्ट उन्हें एक बेसिक नॉलेज ऑफ दीस प्लेयर्स होगी और वुमेन्स क्रिकेट की होगी. तो आई थिंक अगर आप इसके साथ इंक्लूड करें कि अगर वुमेन्स में फॉरेन प्लेयर्स भी आ रही हैं और वो एक एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान में जिस तरह कहते हैं कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी, तो आई थिंक ऑब्वियसली हो सकता है कि शुरू में कुछ हिस्सों से बैकलैश नहीं, लेकिन एक एक्सेप्टेंस में थोड़ी मुश्किल हो. लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे लड़कियों ने या औरतों ने कभी क्रिकेट नहीं खेली. यहाँ पे लाहौर में और कराची में एटलीस्ट इंटरनेशनल मैचेस होते हैं एंड देव बीन हैपनिंग विदाउट प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक इस चीज में झिझकना वुड नॉट बी वाइज. अगर आपकी एबिलिटी है टू गेट टू अ वुमेन्स पीएसएल तो आई डोंट थिंक ये चीज आपको रोकेगी इंशाल्लाह. और उनका दूसरा सवाल का जो हिस्सा है दानियाल के, मॉडर्न टी20 ग्रेड्स पीएसएल में क्यों नहीं खेलते? क्या अवेलेबिलिटी इज एन इशू, बायोसिक्योरिटी इज एन इशू? आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स के लिए अवेलेबिलिटी इज एन इशू, आपने भी वही पाया, जसप्रीत बुमराह वगैरह के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, बट क्या बाकी प्लेयर्स के लिए बायोसिक्योरिटी आजकल कोविड की वजह से या जस्ट जनरली जिस तरह हमने थोड़ी सी देर पहले आपने इसी पे बात की थी कि उतना इंटरेस्ट, एक प्लेयर ऑलरेडी कितने लीग्स खेल सकता है? हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स होने के बावजूद भी मल्टीपल लीग्स खेल रहे हैं, तो ये भी तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, अनफेयर है एक्सपेक्ट करना कि वो हर टी20 लीग में खेलेंगे. यस, तो मैं थोड़ा सा अगेन रेजिस्ट करूंगा द आइडिया कि मॉडर्न ग्रेड्स टी20 पाकिस्तान में ऐसा नहीं खेलते. हिस्टोरिकली आई थिंक खेला हुआ है, बट यस आई टेक द पॉइंट. जिस तरह ऑब्वियसली ऑन्ड्रे रसल की पीएसएल उस तरह वो प्रायोरिटी नहीं है जिस तरह शायद आईपीएल रही हो, लेकिन आई थिंक इट कम्स बैक टू एक तो बायोसिक्योर बबल्स और कोविड जो है वो उसने थोड़ा सा सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट की है. बट आई थिंक इट कम्स टू पीएसएल की प्रोफाइल ग्रो करना. अगर पीएसएल की प्रोफाइल ग्रो करती है तो पीएसएल की फाइनेंशियल एबिलिटी भी, क्लाउड भी ग्रो करती है, तो आपको उनको उसके मुताबिक फाइनेंशियली भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. एंड वो दैट कम्स टू अगर पीएसएल एक हेल्दी इनफ पोजीशन में है कि वो ये कर सकती है तो प्लेयर्स शायद वो खेलें. बिकॉज अगर लीग की प्रोफाइल बढ़ती है, आपने कहा प्लेयर्स कुछ लीग्स ही खेल सकते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि आईपीएल अगर बिगेस्ट लीग है तो वी मेक श्योर कि अगर वो एक और लीग भी खेलते हैं तो वी ट्राई मेक श्योर कि वो पीएसएल है, वो बीबीएल ना हो, वो सीपीएल ना हो, पीएसएल हो. तो आई थिंक ये प्लेयर्स को टारगेट करने से ज्यादा एक स्ट्रक्चरल है कि आप पीएसएल की प्रोफाइल को ग्रो करें. एंड वंस दैट हैपेंस तो फिर सारे प्लेयर्स आएंगे. आईपीएल को फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सुपरस्टार्स को नहीं चेज करना पड़ता बिकॉज वो आईपीएल के नाम से अट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज अ गुड मॉडल टू फॉलो टू सम एक्सटेंट. जोकर का सवाल है जी कि पीसीबी कैसे प्रिवेंट कर सकता है ये जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एनओसीज नहीं दी अपने प्लेयर्स को पीएसएल में हिस्सा लेने के लिए. वो बिलीव करते हैं कि काफी कमजोर आर्ग्यूमेंट थी. न्यूजीलैंड वाली सीरीज टेस्ट सीरीज है, बांग्लादेश सीरीज मार्च के एंड में है, तो जो व्हाइट बॉल प्लेयर्स हैं क्रिकेट साउथ अफ्रीका के वो आ सकते हैं. और अगर वो कह रहे हैं, इसी क्वेश्चन से उनका सवाल से रिलेटेड है कि अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो फिर आईपीएल में उनको इजाजत क्यों मिली थी? तो आई थिंक
डोंट यू फील कि बार बार आईपीएल का कंपैरिजन थोड़ा सा इस केस में हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट्स इन नेचर? एक लिहाज से इसलिए फायदा नहीं है बिकॉज साउथ अफ्रीका की एक मेन प्रायोरिटी है कि वो अपने प्लेयर्स को लूज ना करें. उनको वो इतने प्लेयर्स को लूज करते हैं टू मे बी इंग्लैंड का डोमेस्टिक सिस्टम, अब तो शायद ब्रेग्जिट के बाद कम हो, लेकिन वो डोमेस्टिक सिस्टम एंड उसके अलावा बिकॉज वो T20 अगर फ्रीलांसर्स बन जाए तो वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं. लेकिन आई थिंक थोड़ा सा एक चीज याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जनरली इन दोनों बीच रहे हैं. साउथ अफ्रीका ने यहाँ कि विदाउट इंसिडेंट सीरीज भी खेली है. आई डोंट थिंक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के तरह की थोड़ा सा साउथ अफ्रीका बोर्ड पे और एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े से इश्यूज आए हैं जहाँ पे ग्रेम स्मिथ मे बी उनको थोड़ी सी वहां पे भी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ रही है टू शो कि मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में सीरियस हूँ. आपने भी फॉलो किया है कि वहां पे जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हैं और जो उनकी पीछे SJN हियरिंग्स भी हुई हैं उनमें साउथ अफ्रीका भी एक किस्म की एक अपने प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है. तो दे जस्ट वांट टू शो, आई थिंक मे बी थोड़ा सा वो मैसेज सेंड करने का तरीका है कि आप साउथ अफ्रीका फर्स्ट पे फोकस्ड रहो, और PSL एक थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंट टाइम पे आ गई कि वो थोड़ी स्केपगोट उस चीज के लिए बन गई. आई डोंट थिंक वो साउथ अफ्रीका की तरफ से पर्सनल है. और स्मिथ ने आई थिंक क्रिकेट इन्फो से ही बात की थी हमारी साउथ अफ्रीका कॉरेस्पॉन्डेंट से, और काफी क्लियरली कहा था कि ये लॉन्ग टर्म कोई PSL के खिलाफ डिसीजन नहीं है. व्हेन फ्यूचर में कोई ऐसे कैलेंडर क्लैशेस ना हो तो हमने जिस तरह पहले किए हम PSL को अपने प्लेयर्स रिलीज कर देंगे. तो वो आइडियल नहीं है क्योंकि PSL IPL के बिल्कुल पहले आ रही है, बट आई थिंक इंडिविजुअली इस पे ज्यादा नाराज होना में भी नहीं बनता. फाइनल सवाल की तरफ आते हैं दानियाल. इन भाई का नाम भी जोकर है बट उन्होंने उसके आगे अली डाल दिया टू डिफरेंशिएट. उनका सवाल है कि जी क्या PCB को जिस तरह IPL 20% हर खिलाड़ी की अर्निंग में से बोर्ड को देती है, क्या PCB को भी ये अडॉप्ट करने चाहिए? इससे शायद NOCs मिल जाए. वो कहते हैं जहां तक उनको पता है क्विंटन डिकॉक, शम्सी, रूसी वैंडर ड्यूसन, मिलर वगैरह जो थे उन्होंने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के लिए साइन अप किया था, तो शायद वो सैलरीज वगैरह से मुतासिर थे जो उनको मिल रही है. या उनका कहना है कि एक सेपरेट विंडो ढूंढनी चाहिए PSL में, PSL को होल्ड करने के लिए जब मिनिमल इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, बट वो तो ऑलरेडी बहुत सारा कंजेस्टेड स्केड्यूल है. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक आई डोंट नो, सैलरी शेयरिंग वाली चीज पे स्पेसिफिकली कहना इसलिए मुश्किल है बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो प्लेयर्स की कितनी अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी को उसने इस दफा इन्फ्लुएंस किया है. PSL की विंडो वाली बात यह है कि जिस तरह आप कहते हैं कि आई थिंक अभी ऑलरेडी भी बहुत ज्यादा हम PCB ने टू क्रेडिट कोशिश की है कि वो विंडोज ढूंढते रहे, हर दफा वो फ्लेक्सिबल रहे. PCB हैज रिकॉग्नाइज्ड कि सिर्फ मार्च अप्रैल में PSL नहीं उन्होंने की, और फरवरी मार्च में उन्होंने जब आगे पोस्टपोन हुई थी उन्होंने जून में एक अपनी विंडो ढूंढी जो कि उन्होंने कोशिश की कम से कम डिस्ट्रप्शन हो. इस दफा ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो दे मेड श्योर कि जनवरी फरवरी में हो जाए. बिल्कुल जीरो डिस्ट्रप्शन तो नहीं होगी बिकॉज अदर देन जब IPL हो रही है कभी ऐसा नहीं होगा कि बाकी सारी क्रिकेट रुक जाए. तो आई थिंक उसके बियॉन्ड ऑल थिंग्स कंसिडर्ड विंडो as best as possible जो ढूंढी जाएगी उसमें कहीं ना कहीं तो कोई भी क्लैशेस होंगे and we cannot get away from that. तो I think इस चीज पे वही वाली बात है, it comes down to PSL की ग्रेजुअली अगर आप प्रोफाइल ग्रो करेंगे तो मे बी कैलेंडर में अगर कुछ और भी रहा है तो ये चीज प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेगी and it all comes back to that.